Okay, so good morning to everyone. So, shall I start the today's topic? That is, today we are discussing the topic the what is exactly calibration and glassware's calibration. This is a topic of subtopic from your that is your paper 4, unit 4, that is analytical method validation. That we are discussing the topic that is a glassware and instrument calibration. Ki what is the exactly calibration and how we calibrate the glasswares and other equipment or instruments. So we are discussing the few slide in your yesterday's lecture. That is what is exactly calibration. We see its definition and little bit discussion about it. Ki what is the calibration? And we are on the second point. That is why to calibrate. Okay. So we'll discuss this particular topic. Ki why we are generally calibrate the instrument. So there are three main reasons to having the instrument calibration to ensure the reading from an instrument are consistent with other instrument definitely. Next, to determine the accuracy of the instrument reading, to establish the reliability of the instrument that can be the trusted. That means the first मतलब तीनों पॉइंट से हम लोग को यही समझ में आता कि just to give the assurance that कि whatever reading you are taking with that respect to that particular instrument, it should be the give the accurate reading, and for that main reason that is the purpose we are do the calibration of the instrument to which give the assurance that कि whatever instrument or equipment you are using, they are accurately they are correct, and whatever readings you are getting with the help of that particular instrument, so it's completely 100% assurance that you get the clear cut readings. So when to calibrate, this is also something important ki when we are generally calibrate the instrument. So this point we are already cover in your that is your IQ, OQ, PQ, that is the instrument performance qualification, sorry, installation and performance qualification के अंदर कि exactly when we are generally calibrating the instrument. So there are few point listed in this particular slide. So we will just discuss this particular point कि when we are actually calibrated the instruments. So first point is nothing but the according to the recommendation of the manufacturers, definitely ठीक है, they are giving some interval of time कि जैसे कि तुम लोग का सिंपल है गाड़ी, अगर तुम लोग का कार होता है तो they are giving particular time period की इतने किलोमीटर चलने के बाद या फिर every 1 year के बाद every 3 year के बाद you have to servicing of your car या फिर मोटरसाइकिल जो कुछ भी तुम लोग के व्हीकल्स रहेंगे वैसे जब भी तुम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट आता है सो अकॉर्डिंग टू द देयर गाइडलाइंस दे आर गिविंग सम रिकमेंडेशन की डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन होना चाहिए या फिर मंथ क्वार्टरली होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए या फिर मंथली कैलिब्रेशन होना चाहिए. सो दे आर गिविंग सम गाइडलाइन डिपेंड अपॉन द सैंपल कि तुम्हारे पास कितने सैंपल आते हैं, सैंपल के हिसाब से दे आर गिविंग द गाइडलाइन की मिनिमम 200 सैंपल के बाद एटलीस्ट एक गाइडलाइन एक बार तो कैलिब्रेशन होना चाहिए वगैरह. ऐसे दे आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन. सो बिकॉज दे नो देयर इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट एंड एवरीथिंग एंड इसका क्वालिटी क्या है, कहाँ तक वो रिवाइज करने की जरूरत है, तो दे आर गिविंग द एक्चुअली इंस्ट्रक्शन और मैनुअल की व्हेन एक्चुअली वी आर नीड टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल. नेक्स्ट, after there is any mechanical or electrical shock, मतलब instrument is shut down because of any mechanical or electrical shock, कुछ part डिस्प्ले खराब हो चुका है, कुछ part new replace किया, that time you generally calibrate the instrument. Periodically that is nothing but the annually, quarterly and monthly. It's depend upon your instrument to instrument. Some instrument we are calibrated monthly, some instrument we are calibrated annually, some instrument we are calibrated on quarterly that means once in a 4 month. सो इट्स डिपेंड कि तुम लोग का कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने बेसिस पे यूज होता है, उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, देन क्या बोलते हैं उसका रोबोटनेस कितना है, ये सारी चीजों के ऊपर तुम लोग का कैलिब्रेशन डिपेंड होता है कि कितने टाइम के बाद तुम लोग को इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है. When two specified uses or operating hour has been escaped, that means कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंस्ट्रूमेंट बंद था, जैसे कि सपोज ये महीने में कंटिन्यूसली हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट चालू किया है, जैसे कि अभी इमेजिन करो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के तुरंतली तुम लोग चालू होते हो तो कम्प्लीटली इंस्ट्रूमेंट कुछ टाइम के लिए कम्प्लीटली बंद था. सो दैट टाइम वेन एवर यू आर स्टार्ट यूर न्यू, तो उस टाइम पे तुम लोग को कैलिब्रेशन करना हो, जैसे कि बैलेंस है पूरा महीने के लिए डेली बेसिस पे हम लोग कैलिब्रेशन करते, लेकिन 1 महीने के लिए फिर 1 हफ्ते के लिए बैलेंस बंद हो चुका है, तो तुम लोग का जो उसका मंथली कैलिब्रेशन है उसको भी कंफर्म करना है along with the daily calibration. After the instrument has been repaired and modified, okay,
नेक्स्ट, वेन एवर द ऑब्जर्वेशन अपीयरेंस इज क्वेश्चनेबल, मतलब रीडिंग लेने के बाद तुम लोग को ऐसे लग रहा है कि जो भी रीडिंग्स है उसके ऊपर कुछ तो डाउट है, आई एम नॉट कंफर्म, जैसे कि अपना यूवी का प्रॉब्लम होता है समटाइम्स कि बीच में से अचानक से उसका रीडिंग 999 पर आता है या फिर बीच में ही स्टेबल हो जाता है रीडिंग। सो ऐसे कुछ, जैसे कि सपोज सर्विसिंग किया है फिर भी 1 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के, उसका सपोज ड्यू डेट 6 मंथ के बाद है, बट आफ्टर 1 वीक के बाद ही हम लोग को ऐसे लगा कि जो भी रीडिंग्स आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेक्टेड रीडिंग है उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहे, एंड ऐसे रिपीटेडली हो रहा है। सो डेफिनेटली यू नीड टू कैलिब्रेट योर इंस्ट्रूमेंट टू गिव द एश्योरेंस दैट कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इंस्ट्रूमेंट में वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, कैलिब्रेशन इज ऑफ्टन टू इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, ये जाने दो, कैलिब्रेशन सेकंड पॉइंट भी जाने दो। नेक्स्ट, दैट इज अ सडन चेंज इन वेदर, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज जनरली इंस्ट्रूमेंट हम लोग अभी फिलहाल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वो प्रॉपरली एनवायरमेंटल कंडीशन में ही रखते हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ऑलवेज मेंटेन रहता है, तो आइडियली ऐसे सडन चेंज नहीं होता है वेदर में, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू योर कैलिब्रेशन पॉइंट। देन न्यू इंस्ट्रूमेंट, जब भी न्यू इंस्ट्रूमेंट आता है, some experiment require calibration certificate to check the requirement first before starting the experiment. So ऐसे there are few, ठीक है, जैसे कि वैलिडेशन करना है तो वैलिडेशन से पहले तुम लोग को कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है स्टिल, जैसे कि सपोज तुम लोग का वैलिडेशन का दिन एवरी 3 मंथ के बाद है, तो जनवरी में तुम लोग ने किया, तो अभी नेक्स्ट ड्यू डेट तुम लोग का 13 अप्रैल को है, एंड इमेजिन करो कि फरवरी के अंदर तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट पे कोई सैंपल आता है फॉर द वैलिडेशन के लिए, एंड देयर रिक्वायरमेंट इज बिफोर द स्टार्टिंग द वैलिडेशन यू हैव टू कैलिब्रेट योर इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल एचपीएलसी हो या फिर बैलेंस। सो डेफिनेटली यू नीड टू कैलिब्रेशन इन फेब्रुवरी ऑल्सो, एंड इन अप्रैल ऑल्सो तुम लोग कैलिब्रेट करोगे, क्योंकि तुम लोग का वो ड्यू डेट था, तो अप्रैल का तुम लोग स्किप नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग को फरवरी में भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट बेस की उनका सैंपल प्रोसेस करने से पहले यू हैव टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, बिफोर मेजर क्रिटिकल मेजरमेंट, जैसे कि एकदम सेंसिटिव कुछ मेजरमेंट करना है एंड इट्स फील कि उससे पहले बेटर रहेगा कि अगर हम लोग कैलिब्रेट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स अच्छे रहेंगे। So these are the few points ki where and when we are actually do the calibration. Okay. The now we will go to the second section. अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि what is exactly calibration, why we perform the calibration and when we do the calibration. उसके बाद कैलिब्रेशन के अंदर 2 सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट दैट इज, मतलब जनरली नॉट 2 सेक्शंस, ईच एंड एवरी चीज का हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। सो फर्स्ट दैट इज नथिंग बट द ग्लासवेयर्स, नेक्स्ट इक्विपमेंट, एंड थर्ड इज नथिंग बट योर इंस्ट्रूमेंट। सो तुम्हारे सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर्स इन डिटेल में थोड़ा सा है कि हाउ एग्जैक्टली वी आर कैलिब्रेटेड। So I will not focus much more on your instrumentation calibration because we जनरली नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन, एंड IQ OQ PQ के अंदर हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग द मेथड वैलिडेशन आल्सो वी कवर फ्यू ऑफ द पॉइंट, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजननेस वगैरह। सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सेम इन इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन, एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन इज बेस्ड ऑन देयर फैक्टर्स और देयर पार्ट्स एंड वॉट एवर अदर इक्विपमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हर एक का प्रोसीजर सेम नहीं है। सपोज यूवी का कैलिब्रेशन करना है तो यूवी के स्टैंडर्ड्स अलग है, यूवी के पैरामीटर्स अलग है। एचपीएलसी का कैलिब्रेशन करना है तो एचपीएलसी के स्टैंडर्ड्स अलग है, एचपीएलसी के पैरामीटर्स अलग है। सेम फॉर योर बैलेंस। सो ईच इंस्ट्रूमेंट हैव देयर यूनिक क्या बोलते हैं फैसिलिटी और यूनिक कनेक्शन विद अदर इंस्ट्रूमेंट, एंड उसके इक्विपमेंट, तो उसके हिसाब से उसका कैलिब्रेशन होता है। जैसे कि सिंपल है, अगर यूवी में करना है तो हम लोग को वेवलेंथ देखना है, स्पेक्ट्रम मोड देखना है। एचपीएलसी करे तो तुम लोग रिजर्वायर का कैलिब्रेशन करोगे, पंप का कैलिब्रेशन करोगे, सैंपल इंजेक्टर पोर्ट का कैलिब्रेशन करोगे, कॉलम का कैलिब्रेशन करोगे। ऐसे हर एक के अलग अलग चीजें होते हैं एंड उसके हिसाब से कैलिब्रेशन करते हैं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स अलग होते हैं। लेकिन देर आर फ्यू पॉइंट्स विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन ईच एंड एवरी कैलिब्रेशन, कि हम लोग को हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी चेक करना है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में प्यूरिटी परसेंटेज चेक करना है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में रोबोटनेस चेक करना है। तो ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जो ऑलमोस्ट सबके लिए सिमिलर होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर देर आर फ्यू टेस्ट वी आर परफॉर्मिंग टू एनालाइज योर इंस्ट्रूमेंट। So that is nothing but your instrumentation calibration. So we will discuss this later, but इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगी. We will discuss majorly about the calibration of the glasswares, or you can say volumetric glassware. I just want to give the more focus on this particular topic because इससे पहले शायद तुम लोग ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि glasswares are also calibrated.
ठीक है, एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन कैलिब्रेट द ग्लासवेयर्स, एंड कौन से ग्लासवेयर्स हम लोग को कैलिब्रेट करने हैं, क्योंकि हर एक ग्लास के ऊपर मेजरमेंट तो लिखा होता है, तो जनरली ग्लासवेयर का कैलिब्रेशन क्यों करना है, एंड कौन से ग्लास, बिकॉज इससे पहले हम लोग ने कभी कि कैसे करते हैं वो कुछ तुम लोग को शायद आइडिया भी नहीं रहेगा एग्जैक्टली कैसा होता है ग्लासवेयर का कैलिब्रेशन. So we will discuss this particular part in detail because this is a very important topic before you start any work in company. Ki what is the exactly we perform, how exactly we perform the glassware का calibration. So first before start the topic, I have few questions. कि अकॉर्डिंग टू यू कि कौन से ग्लासवेयर का हम लोग कैलिब्रेशन करते होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है तो देर आर लॉट्स ऑफ ग्लासवेयर वी आर यूजिंग इन योर लेबोरेटरी. एग्जाम्पल बीकर, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, राउंड बॉटम फ्लास्क, पिपेट्स वी आर यूजिंग. सो अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन सी चीजें कि उसका कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है, एंड कौन सी चीजें नहीं ऐसी है कि जिनका कैलिब्रेशन नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है. just you can guess and you can write in chat box your answer. I just open the chat box so everybody can see the what you are written in your chat box. I don't know chat box display होता है या नहीं. Okay, चलो बताओ मुझे ऐसे कौन से ग्लासवेयर है जिनका कैलिब्रेशन करना इम्पोर्टेंट है, एंड कौन से ग्लासवेयर है जिनका कैलिब्रेशन करना Hello, जरूरी. यस. hello, ma'am. हाँ. Thermometer. Then our volumetric glasswares, ओके like ओके ओके. volumetric हाँ. ठीक pipette, है. volumetric flask. ओके. सो आई गेस सुप्रिया, राइट? हु इज ही? हुज? Yes, ma'am. हाँ, सुप्रिया. Yes, ma'am. तो Supriya. सुप्रिया ने बताया कि किसका करना है हम लोग को, थर्मामीटर का करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का करना है, देन और क्या बताया, कोई और? Vol pipettes, volumetric पिपेट्स का pipettes. करना है. ओके. डू वी कैलिब्रेट द बीकर्स? Yes, ma'am. कर सकते हैं. क्यों करना है बीकर का कैलिब्रेशन? Because measurement होता है ना उसके ऊपर मैम, ओके तो we have to calibrate it. ओके, ठीक है. मेजरिंग सिलेंडर? Yes, ma'am. Same. ओके, मेजरिंग से, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू यू सारे मैक्सिमम, ठीक है. ग्लास रॉड का करोगे कैलिब्रेशन? नहीं. ओके. टेस्ट ट्यूब? Yes. Okay, ठीक है, चलो. So we will discuss it later exactly. Okay, so according there are few answers are correct and few answers are may not be correct because we are generally not do the calibration for because volume conical flask, round bottom flask, test tube, ये सारी चीजों का generally we are calibration नहीं करते. क्यों नहीं करते? We are calibrating only for those glasses which are we are actually using for volumetric purposes. मतलब जिसमें यू आर एक्यूरेटली वॉल्यूम मेजर करते हो उसी ग्लासवेयर का जनरली कैलिब्रेशन होता है. ऐसे नहीं कि बीकर का कम्प्लीटली नहीं होता है, बट बीकर हम लोग वी नेवर यूज बीकर्स फॉर टू टेक 100 ml ऑफ वाटर. जैसे कि सपोज यू वांट टू प्रिपेयर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. So we never measure that particular solvent with beaker. We are generally measure with the measuring cylinder, and then we pour the particular solution in beaker to mix that particular content. Right? We never take the solution which is a mark given on your beaker and उसके अंदर 100 ml लिखा है तो उसके हिसाब से हम लोग water रख के we never perform. Right? We always perform either the volumetric flask or either we are using the measuring cylinder. Same for the test tube. जनरली जैसे कि अभी सिंपल है, जब भी तुम लोग मतलब माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में डाइल्यूशंस वगैरह करते, स्टिल इफ यू हैव देयर इज अ मार्क इन योर टेस्ट ट्यूब लाइक 30 ml 20 ml, बट वी नेवर मेजर लाइक डायरेक्टली पोर करके 20 ml लेते. वी ऑलवेज मेजर अलोंग विथ योर पिपेट्स एंड देन पोर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन योर टेस्ट ट्यूब, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो नॉट परफॉर्मिंग द ग्लास मेजरिंग कैलिब्रेशन विथ योर टेस्ट ट्यूब्स. But definitely the cylinders, or you can say your volumetric flask, where we are actually measure the prepare and measure the particular volume and concentration of that particular compound. So we generally calibrate pipettes, cylinder, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये चीजें हैं जिनका मेजरली कैलिब्रेशन होता है. कोनिकल फ्लास्क वी जस्ट यूज टू मिक्स द सॉल्यूशन और वी कैन यूज द टाइटेशन पर्पस के लिए. ब्यूरेट, डेफिनेटली ब्यूरेट के अंदर जो भी रीडिंग्स आते हैं बिकॉज तुम लोग का पूरा जो भी रीडिंग्स आता है इट्स डिपेंड अपॉन मेजरमेंट ऑफ द ब्यूरेट 5.6 4.6, तो सच में उतना ही वॉल्यूम जाता है नहीं वो पता होना बहुत जरूरी है.
So we also perform the calibration for the burette, but not for the conical flask, not even round bottom flask, which we are generally using for reflex purpose वगैरह. So majorly कौन से glassware का calibration होता है? Only those glassware which we are using for measuring purpose के लिए. तो beaker generally beaker में हम लोग 100 ml लेते हैं, लेकिन we never use beaker for measuring purpose. We can use to mix and pour that particular solutions, right? That's why we are not perform the calibration for your beaker. Okay, so we will move for the next slide. This is the PPT available on your internet. मैंने directly internet से लिया slide share पे ये PPT available है and it's काफी मतलब काफी अच्छे से है, ठीक है? Okay, so here we talk about the three type of glassware typically used in analytical chemistry for especially for measurement purposes. So that is nothing but the burette. Next is your volumetric flask, pipette. There is a one more that is your measuring सिलेंडर, ठीक है. बट आइडियली मेजरिंग सिलेंडर का कैलिब्रेशन होता है, बट इट नेवर परफॉर्म द मेजरिंग सिलेंडर का कैलिब्रेशन इन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसलिए मेंशन नहीं होगा शायद कि डेली बेसिस पे जो लेबोरेटरी होते हैं वहां पे मेजरिंग सिलेंडर का मेजर कैलिब्रेशन नहीं होता. यू हैव टू आउटसोर्स योर मेजरिंग सिलेंडर्स. द रीजन बिहाइंड दैट कि जनरली जो भी लेबोरेटरी में बैलेंसेस होते हैं एक्यूरेट वे करने के लिए हार्डली 200 मिली सॉरी 200 ग्राम या फिर 500 ग्राम तक होते हैं. एंड मेजरिंग सिलेंडर्स का वॉल्यूम होता है 1000 ml वगैरह, सो उसका वेट वगैरह लेना इट्स नॉट पॉसिबल विद वॉट एवर बैलेंस इज अवेलेबल विद यू. सो दैट्स व्हाई जनरली मेजरिंग सिलेंडर का सॉरी क्या बोलते हैं कैलिब्रेशन लैबोरेटरी बेसिस पे करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू कैन आउटसोर्स योर मेजरिंग सिलेंडर्स फॉर द calibration purpose. Okay, so let's we do the what exactly how we perform the calibration of glassware. So let's see the requirement of glasswares that sorry requirement of glassware calibration exactly क्या क्या लगता है. First of all, that is calibrated weighing balance. Definitely जो भी balance हम लोग use करने वाले should be the first of all balance calibrated होना बहुत जरूरी है. Calibrated thermometer that is accurate to 0.1 degrees Celsius with calibration certificate and value traceable by the निस्ट, ठीक है. निस्ट वैल्यू ट्रेसेबल मींस क्या कि उसका कैलिब्रेशन के लिए तुम लोग ने जो रिएजेंट वगैरह यूज किए होंगे वो निस्ट वाले रहेंगे. प्योर डिस्टिल और डीआयोनाइज वाटर, बिकॉज वाटर जैसे मैंने बोला था कि वाटर हार्ड वाटर वगैरह रहेगा, टैप वाटर इट कंटेन लॉट्स ऑफ आयंस एंड एक्सेट्रा. इट मे चेंज द डेंसिटी ऑफ योर वाटर एंड इट मे इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट. स्टॉपवॉच, I really don't know why we are using here. Here actually they are mentioned the stopwatch, but according to me, stopwatch is really not needed to analyze the calibration of your glassware. But let's see, maybe पता नहीं कहाँ पे use होता होगा. We will see in detail in later side. The glassware should be the clean properly. Definitely जो भी तुम लोग को glassware का calibration करना है, it should be properly neatly clean and wash and dry होने चाहिए. Before you start the calibration, glassware washing का भी एक procedure होता है. Ideally जब तुम लोग कंपनी में follow करते हो, they are actually having the SOP for the glassware washing also. जैसे कि आज के जो भी glassware है, so they are keeping the glassware for 4 to 5 hours or overnight in the particular bucket where वो सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर वो पोर करके रखे हैं. उसके बाद नेक्स्ट डे आके उसको प्रॉपरली ब्रश से क्लीन करके वॉश करते हैं. उसके बाद जो तुम लोग का टैप वाटर से उसे प्रॉपरली वॉश करके सम टाइम सपोज जैसे कि तुम लोग को कुछ डेलिकेट चीजों के लिए लगना है तो यू आर जस्ट रिंस विथ योर डिस्टिल वाटर से तुम लोग उसको रिंस करते हो. एंड रिंस करने के बाद यू आर कीप इट इन द ओवन फॉर द ड्राई पर्पज के लिए. ओवन से निकालने के बाद जो तुम लोग का ग्लासवेयर का स्टोर रूम होता है वहाँ पे ग्लासवेयर रखे जाते हैं कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद. बिकॉज ओवन से निकालने के बाद उसका टेम्परेचर वगैरह थोड़ा सा ये होने के लिए रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए दे आर कीपिंग इन द ड्राई होने के, बिकॉज गरम गरम यू यूज नहीं कर सकते, रूम टेम्परेचर पे आना बहुत जरूरी है. उसके बाद उसको तुम लोग वो रैक पे रखते हो एंड देन यू कैन यूज फॉर द डेली पर्पज यूज के लिए. So this is the particular procedure for washing of the glassware. So before you use any glassware for calibration, it should be the properly washed and clean and dry होना चाहिए. Okay, so these are the some requirement with respect to glassware calibration. I hope nobody is having any doubts and we can move for the next slide also. So can I continue for the next slide? Anybody can say yes. So I can. Yes, ma'am. Okay. So first we will discuss the that is your volumetric flask का calibration कैसे करते हैं, ठीक है. Volumetric flask is also called as a measuring flask or a graduated flask.
It is a type of laboratory flask calibrated to contain a precise volume at the particular temperature. ठीक है. So ये टाइप के फ्लास्क जनरली करते हैं, उसके लिए क्या है, हम लोग मेजर क्या करते हैं, प्रिसाइज वॉल्यूम. बिकॉज व्हाई वी आर यूजिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, डेफिनेटली टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जैसे कि 100 ml है तो वी हैव 100% गारंटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रिपेयर किया, मतलब वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली 100 ml रहेगा एंड उसका परसेंटेज जो रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा. सो calibration procedure for volumetric glass flask, not only volumetric flask, maximum जैसे कि burette हो, pipette हो, सबका calibration का procedure almost same है. So we first read the procedure, फिर ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. फिर जैसे कि pipette है, then burette है, उसके लिए same procedure रहेंगे. So that time I will not read this particular slide, that time we can just skip that particular slide. So let's see in detail. So calibration should be carried out at 25 plus minus 2 degree Celsius. So definitely जैसे कि suppose तुम लोग को जहाँ पे calibration करना है, जैसे कि अभी जहाँ पे हम लोग calibrate करते हैं generally, we have a different kind of specifically room for balance. मतलब हम लोग का balance का लिए अलग से room होते थे. There are two rooms where we are actually keeping the balance, and we always perform the calibration of glass wells in balance room. ठीक है. सो बैलेंस रूम में वे लेने के मतलब जनरली कंपनी में जो सिस्टम होते हैं, वैसे मैक्सिमम कंपनी में ऐसे ही सिस्टम होते हैं. बिकॉज आई वर्क इन 3 कंपनी एंड सारी जगह पे यही सिस्टम, जहाँ पे बैलेंस था तो बैलेंस के साइड पे टेबल होता था. वहाँ टेबल पे यू कैन वेट योर सैंपल, जहाँ पे डेसिकेटर्स वगैरह रखे हुए थे. सो जैसे कि सपोज तुम लोग बैलेंस वाले रूम में ही कैलिब्रेट करने वाले हो, किसी और रूम में कैलिब्रेट करने वाले, तो दो वॉट एवर ग्लासेस और वॉट एवर रिएजेंट्स, वॉट एवर वाटर, जो कुछ भी तुम लोग को लगने वाला है फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज के लिए, बिफोर 1 to 2 hours बिफोर स्टार्ट द कैलिब्रेशन यू शुड कीप ऑल द रिएजेंट्स, ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड सॉल्वेंट and whatever glassware you want to calibrate, apart from whatever glassware you are required to calibrate your system. सारे चीजें तुम लोग को बिफोर प्रायर टू 1 to 2 hours तुम लोग को उसी रूम में रखने हैं, because it should be matched with the environmental temperature, and actually you have to maintain the temperature and humidity of that particular room, that is minimum 25, so मतलब plus or minus 2, that is generally 27 degree Celsius पे होता है because it's a room temperature. but यहाँ पे लिखा है कि 25 plus 2 minus, यहाँ पे तुम लोग कैलिब्रेशन करते हो. टेयर द वेट बैलेंस. ठीक है, बैलेंस जो भी यूज करने वाला शुड बी प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, देन यू कैन टेयर द बैलेंस. देन अभी क्या करना है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का लेना है तो सबसे पहले तुम लोग को जो भी चीजें लगने वाली, जैसे मैंने बोला कि क्या क्या लगेगा. फ्लास्क लगेगा जो कैलिब्रेट करने वाला, अकॉर्डिंग टू वाटर लगेगा, डिआयोनाइज्ड वाटर एंड बैलेंस. ठीक है, एंड यू डेफिनेटली नीड द बीकर. तो क्लीन एंड ड्राई बीकर तुम लोग लोगे. तो वेट ऑफ द एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सबसे पहले तुम लोग एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वेट लोगे 0 पे, टेयर करके रहोगे 0 पे लोगे. देन रिकॉर्ड द वॉल्यूम इन, record the value in gram. Okay, you will measure in gram. And note if this is a class A or other grade. Okay, ये मैं थोड़ा later discuss करूंगी कि exactly क्या है. The glasswares are ideally found in the 2 grades, that is the class A and class B. Nothing much difference in that. It is nothing but the grade is based on the accuracy of your measurement. B वाले glassware थोड़े से accuracy में लो होते हैं, सॉरी, ए वाले जो ग्लासवेयर होते हैं वो थोड़े से हाईली 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 एक्यूरेट होते हैं. जैसे कि सिंपल एग्जांपल देना है तो HPHC ग्रेड ऑफ मेथेनॉल एंड AR ग्रेड ऑफ मेथेनॉल प्यूरिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है. सेम काइंड ग्लासवेयर, उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस. तो पहले तुम लोग को नोट डाउन करना है कि तुम लोग ग्लास ए ग्रेड वाले ग्लासवेयर का कैलिब्रेशन कर रहे हो, और ग्लास दोनों का प्रोसीजर सेम है, बट दोनों के जो क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो काफी डिफरेंट है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट तुम लोग को वो डिसाइड करना है कि तुम लोग कौन से ग्लास का कैलिब्रेशन करें. नेक्स्ट, fill the volumetric flask up to the mark with distilled water and reweigh it. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम लोग ने एम्प्टी ग्लासवेयर का जैसे कि सपोज तुम लोग ने क्या बोले एम्प्टी फ्लास्क का वेट किया, जैसे कि इमेजिन करो 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसका तुम लोग वेट कर रहे हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी का वेट करोगे. एम्प्टी का वेट करने के बाद you will fill that particular volumetric flask with your distilled water, sorry, तो with deionized water है. ठीक है, मेकअप प्रॉपर करना है, सिंगल ड्रॉप भी ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट रिमूव द सॉल्वेंट अगेन. तो स्टार्टिंग से करो, उसके बाद पिपेट से ड्रॉप वाइज एक्चुअली करो. एंड आइडियली तुम लोगों को मतलब अभी मुझे इतनी आदत हो रही थी कि आई कैन एक्चुअली
easily I can make up with the directly beaker. But whenever actually when we are performing the glassware calibration, so it is as per SOP, you has to make the final makeup along with the pipettes only. That is, we are using micro pipettes, 1 ml के 100 ml के micro pipettes हम लोग यूज करते थे. तो उसी से तुम लोग को फाइनल मेकअप करना है, तो उसी से हम लोग मेकअप करते हैं. उसके बाद तुम लोग को रीवेट लेना है. मेक श्योर जब तुम लोग यहाँ पे रीवेट इसलिए बोला है, whenever you are keeping the flask along with the distilled water, you are not carrying the balance. You are using the directly. Suppose तुम्हारे फ्लास्क का वेट है 25 एंड वाटर का वेट सपोज 50 ml का वाटर अराउंड 75 ml तक जाएगा. ml ग्राम. So you will write 75 gram of weight, जो भी मतलब वाटर प्लस तुम लोग का फ्लास्क का वेट, ऐसे उसका दैट वे इट इज रीवेटेड. ठीक है. द मेजर टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज, डेफिनेटली जब तुम लोग मेजर करोगे उस टाइम पे, जिस टाइम तुम लोग ने बैलेंस के ऊपर वे कर रहे हो, बिफोर यू कीपिंग द फ्लास्क इनटू द weighing balance, you just measure the temperature of that particular water because it is need for the correction factor to know, because water का density with respect to temperature change होता है, so definitely it will affect and your volume of the measurement. Okay. Repeat the procedure minimum 5 times. अभी इसका मीनिंग क्या, repeat the procedure, डेफिनेटली तुम लोग उसका भी वेट होगे, उसके बाद उसको पानी डालोगे, फिर से ड्राई तो फ्लास्क होगा नहीं, तो रिपीटली एम्प्टी वेट कैसे लोगे. सो फ्लास्क का जो एम्प्टी वेट है वो एक ही टाइम पे लेना है. उसके बाद तुम लोग ने वाटर फिल किया, फर्स्ट वेट लिया, उसके बाद उस वाटर को तुम लोग क्या करोगे, रिमूव करोगे, फिर से फ्लास्क को फिल करोगे अप टू द मार्क. अगेन यू विल रीवेट. ऐसे तुम लोग कितने टाइम्स करोगे, यू विल टेक द 5 times, that is the repeat the procedure, that is the minimum 5 times, and every time तुम लोग वेट उसका मेंशन करोगे. नाउ जस्ट see abhi this is actually the procedure you can follow as a SOP for your calibration of the flask. लेकिन यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं किया कि तुम लोग को एम्प्टी फ्लास्क का रिपीटेडली वेट लेने की जरूरत नहीं है. अभी ये मैंने तुम लोग को बताया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन द कैलिब्रेशन, आई नो दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो जब भी मेथड ट्रांसफर, इमेजिन को दिस इज द प्रोसीजर फॉर तुम लोग को कैलिब्रेशन करने के लिए मिला है, एंड ये एक प्रोसीजर किसी ने डेवलप किया है, तुम लोग ने यूज कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. दैट यू कैन सी एज अ मैनुअल एरर, दैट इज अ मेथड ट्रांसफर के अंदर. छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम लोग को एक्चुअली मेंशन करना बहुत जरूरी होता है व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द प्रिपेयरिंग द एसओपी और यू आर गिविंग द मेथड टू वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. ओके, फॉरगेट अबाउट इट. सो एग्जैक्टली अभी हम लोग ने क्या किया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का कैलिब्रेशन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए थी वो लाके रखी. उसके बाद एम्प्टी फ्लास्क का सिंगल वन टाइम वेट किया. उसके बाद फ्लास्क को 5 टाइम्स वाटर से प्लेस किया एंड 5 टाइम्स उसका वेट लिया. ठीक है. दिस इज द फाइनल प्रोसीजर. तो अभी अपने के पास एक टेबल रहेगा जिसके अंदर हम लोग को पूरे वैल्यूज फिल करने हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर PPT because only here I can get this particular table because मैंने बोला था कि मैं I was searching for that particular tabular format. वहाँ पे मुझे सारे रीडिंग्स मिलेंगे. तो with this we can easily understood कि exactly कैसे होता है. थोड़ा सा ब्लर है, so I just explain. तो यहाँ पे वो पूरा this is actually paper जिसके ऊपर तुम लोग कैलिब्रेशन करते हो. तो ऊपर पूरा लिखा होता है, the calibration of the flask, that is a 50 ml flask वगैरह, blah blah blah, rate वगैरह सब लिखा होता है. लेकिन यहाँ पे आता है glassware ID. Each flask have their unique ID based on the glassware. मतलब जनरली कंपनी में जो भी ग्लासवेयर यूज करते हो, each flask के लिए ID होता है. जैसे कि सपोज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है तो उसका नंबर होता है VOL1 या फिर VOL1A. ऐसे उसका एक स्पेसिफिक बारकोड या फिर नंबर होता है. इट्स डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी. क्या सिस्टम होता है कि कैसे नंबर देना. Why we are using this particular number for the glassware, you know, because whenever you are validation and calibration करते हो, तो during validation which flask you are actually using, जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो तुम लोग को पता होना चाहिए कौन से फ्लास्क से तुम लोग ने मेजर किया, कौन से पिपेट से तुम लोग ने मेजर किया. तो दैट टाइम द आईडी इज नीडेड कि ये पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसे हम लोग ने स्टैंडर्ड को मेजर किया था या फिर ऐसे चीज के लिए. सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी ग्लास कैन हैव दैट पर्टिकुलर ग्लास आईडी. नेक्स्ट, तो यहाँ पे जिस फ्लास्क का तुम लोग कैलिब्रेशन करे वहाँ पे उसका आईडिया आएगा. मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि कौन से कंपनी का है, दैट इज दैट मैन्युफैक्चरर या फिर ब्रांड. टेम्परेचर ऑफ वाटर, दैट इज ड्यूरिंग द एनालिसिस तुम लोगों ने जो भी टेम्परेचर लिया था. ठीक है.
तो वो यहाँ पे मेंशन की 24 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर था. Date of the calibration and the volume of range मतलब 50 रेट में मतलब 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसका तुम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हो. The density of the water at this particular temperature. How we will find the density of the water at this particular temperature? Generally water का density 1 होता है at accurately. तो जब तुम लोग ने वाटर मेजर किया तो 24 डिग्री सेल्सियस से वाटर का ये पर्टिकुलर डेंसिटी था जो हम लोग ने मेजर करके निकाला था. मतलब दैट इज नथिंग बट द एक्चुअली वेट बाय दिस पर्टिकुलर वेट. ऐसे उसका कैलकुलेशन होता है डेंसिटी का. So based on that, so this is the density of pure water, that is a 0.99.70. ये पे हम लोग को निकालना पड़ता है density of the water. Then this is the correction factor which is actually needed to the based on your density and temperature. The correction factor is made, and we have to addition of this particular correction factor. Or suppose density बहुत ज़्यादा है, so we subtract that particular correction factor वगैरह से criteria होते हैं. So ये सारा information था. अभी देखो the empty flask weight. एवरी जगह पे empty flask weight अभी यहाँ पे तो डिफरेंट दिख रहा है. आइडियली empty flask का weight सारे जगह पे सेम होता है because we are taking only one time the empty flask का weight. Because whenever you are doing the calibration, generally तुम लोग फ्लास्क को फिर से ड्राई करने के लिए 1 घंटा वेट नहीं करते. ठीक है. So ideally whenever you are doing the empty weight 5 times के लिए empty weight सेम होता है. Because ऐसे नहीं कि एक बार उठाया फिर से बैलेंस कर रखा है, ऐसे 5 टाइम्स तुम लोग वेट नहीं लेते. सिंगल टाइम वेट लेते हैं एंड उसके बाद उसका वेट तुम लोग लिखते हो. दैट इज योर एम्प्टी फ्लास्क वेट. देन वेट ऑफ द फ्लास्क विद द वाटर, दैट इज एम्प्टी प्लस 50 ml जो तुम लोग ने वाटर ऐड किया है उसका यहाँ पे वेट आएगा. फिर वो वाटर को तुम लोग फोल्ड करोगे, डिस्कार्ड करोगे, अगेन फिर से फिलर करोगे एंड अगेन उसका वेट. सो दिस इज द वेट ऑफ द फ्लास्क अलॉन्ग विद द वाटर. दिस इज द एक्चुअली वेट ऑफ द वाटर इन ग्राम. मीन्स व्हाट? वेट ऑफ द फ्लास्क एंड वाटर माइनस वेट ऑफ द empty flask. उसके बाद तुम लोग का जो वेट आएगा वो वेट यहाँ पे मेंशन आएगा. वेट ऑफ द वाटर विद द करेक्शन फैक्टर. आइडियली भी यहाँ पे लिखा है प्लस, तो आइडियली भी ऐड द वेट ऑफ द वाटर प्लस करेक्शन फैक्टर्स. एंड उसके बाद जो रीडिंग हम लोग को मिलते हैं वो रीडिंग हम लोग को यहाँ पे मिलती है. सो वेट ऑफ द वाटर विद करेक्शन फैक्टर एट 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब हम लोग ने जो वेट लिया था तो 24 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर था. So with the help of correction factors, now we get the reading. जैसे मैंने बोला था कि जनरली कैलिब्रेशन 27 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं. दिस इज द वेट ऑफ द वाटर रहेगा बाय द कैलकुलेशन. इतना वेट वाटर का 24 डिग्री सेल्सियस पे है तो 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेट कितना रहेगा ये हम लोग ने कहाँ से निकाला? विद द हेल्प ऑफ द करेक्शन फैक्टर. उसके बाद वॉल्यूम, दैट इज द वेट एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर. जैसे कि वाटर का जो भी तुम लोग वाटर यूज कर रहे हो उसका ओरिजिनल डेंसिटी क्या है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिकॉज हम लोग डेंसिटी वाटर का 1 मेजर करते हैं लेकिन एक्चुअली तुम लोग का वाटर का डेंसिटी है because you're actually effect on your weighing balance जब तुम लोग water का weight ले रहे हो. So here we generally divide the density, that is your जो volume का weight रहेगा उसको divide करते हैं हम ये particular density से, and उसके बाद that is the weight divided by density is the volume of your sample. फिर ये जो sample का पूरा तुम लोग का जो weight आया है every time पे, ठीक है, then we find out the mean of the particular value. I hope यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा. हाँ, this is the mean of this particular volume and deviation from the actual value. Deviation means what? तुम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितने ml का लिया था? 50 ml का. So तुम लोग को एक्चुअली वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था 50. लेस देन 1 मिनट है, लेक्चर में भी कट हो जाएगा. लेट्स सी. So तुम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम 50 आना चाहिए लेकिन तुम लोग का वॉल्यूम कितना है? 49.3. मतलब इतना इज योर एक्चुअली वॉल्यूम कम आएगा. दिस इज नंबर डेविएशन. व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? सॉरी, यहाँ पे लिखा है 0.0600. ठीक है, तुम लोग का डेविएशन कितना है? 0.0600.